Hey guys, this is study session part 2. Today we are going to start the front end road. So let's get. So this is the front end. Today we are going to be doing the net. Start with the basic, the programming. I'm not jumping on the programming part like the HTML because I just want if anyone who's like the front end roadmap they can also join because it's from the going from the scratch. How does the internet work? As a developer, it is important to have a solid understanding of what the internet is, how it works. In it is the foundation on which most modern software applications build. In order to build effectively or and stable applications and services, you need to have a solid understanding of how the internet works and how to leverage its power and connectivity. तो बेसिकली अगर आपको बेसिकली वेब डेवलपर बनना है तो बेसिकली आपको सीखना पड़ेगा कैसे इंटरनेट काम करता है जिससे आप कैसे आप इफेक्टिव एंड सिक्योर एंड स्केलेबल एप्लीकेशन बना पाओ या फिर सर्विसेज बना पाओ इन दिस आर्टिकल वी विल कवर द बेसिक्स ऑफ इंटरनेट इंक्लूडिंग व्हाट इट इज एंड हाउ इट वर्क्स some basic concepts and some common protocols that are used to build applications and services on the internet. So basically we will start with the introduction to internet. Before we learn what the internet is, we need to understand what a network is. A network is a group of computers or other devices which are connected to each other. For example, you at your home might have a network of computers and devices. Your friend living next door might have a similar network of devices. Their neighbor might have a similar network of devices. All these networks when connected together forms the internet. जैसे कि आपके घर में वाईफाई होगा, ठीक है, किसी घर में अगर वाईफाई लगा होगा तो आप उससे कनेक्ट होते हो और वो वाईफाई बेसिकली जो है वो नेट से कनेक्ट होता है। तो ये बता रहे हैं कि आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, आपने उससे कनेक्ट किया, आपकी मम्मी ने उससे कनेक्ट करा, उस वाईफाई से आप वाईफाई से कनेक्ट किया और वो वाईफाई जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तभी आप ये जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख पा रहे हो इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि ये सब चीज़ कनेक्टेड है, आपको दिखता नहीं है बट ये सब चीज़ें हो रही हैं सराउंडिंग। तो दिस इज लाइक द नेटवर्क। तो द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जैसे कि आपका घर का एक नेटवर्क हुआ, जैसे वो वाईफाई से कनेक्ट हुआ तो वो एक नेटवर्क बना और उस नेटवर्क को बेसिकली इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया गया है। तो इट्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन द लेट 1960s 1960s by the by the United States Department of Defense as a means of creating a decentralized communication network that could withstand a nuclear attack. Over the years, it has evolved into a complex and how to read this, bro. Sophisticated. Okay. Into a complex and sophisticated. अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही तो मैं sophisticated मतलब complex. Let me see the meaning first. Experience affect similar worldly having revealing evolving greater a great deal of worldly you can understand sophisticated मतलब कि थोड़ा सा complex network that spans the globe मतलब पूरे वर्ल्ड को बेसिकली कवर करता है एक तरह से. Today the internet is an essential part of modern life used by billions of people around the world to access information. तो बेसिकली आज इंटरनेट हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ हो गई है. आप लोग जैसे सुबह सुबह उठते हो, व्हाट्सएप चेक करते होगे, इंस्टाग्राम चेक करते होगे, तो मतलब सुबह सुबह उठते ही हम लोग मतलब फ़ोन यूज़ करते हैं. उसमें बेसिकली हम लोग जो एप्लीकेशन आजकल यूज़ करते हैं वो सब इंटरनेट रिक्वायर करते हैं. तो इट्स लाइक अ वेरी एसेंशियल थिंग नाउ डेज. आप बिना बिना इंटरनेट के आप रह नहीं सकते. यूज बाय बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, communicate with friends and family, conduct business, and much more. As a developer, it is essential to have a solid understanding of how the internet works
the various technologies and protocols that underpin it. तो इसीलिए अगर आप चाहो तो तुरंत आप चाहो तो HTML वगैरह पे कूद सकते थे हम लोग जंप कर सकते थे HTML वगैरह पे। हम लोग इसलिए नहीं कर रहे जिससे कि हम लोग इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सके कि जो सॉलिड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंटरनेट काम कैसे करता है। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर टू बिल्ड समथिंग ऑन इट। तो हम लोग इसलिए एक सॉलिड फाउंडेशन बना रहे हैं। How the internet works, an overview. At a high level, the internet works by connecting devices and computer systems together using a set of standardized protocols. These protocols define how information is exchanged between devices and ensures that data is transmitted reliably and securely. The core of the internet is a global network of interconnected routers, which are responsible for directing traffic between different devices and systems. Which you, when you send data over the internet, it is broken up into small packages that are sent from your device to the router. The router examines packages and forwards the next router in the path to the destination. The process continues until the package reaches to the final destination. तो इसलिए अब यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। तो राउटर क्या होता है मैं एक बार देख लेता हूँ जस्ट टू हैव अ बेटर फटाक से देखते हैं वीक्स पे। router is a connect router is a router is a in device state packages due to networks। तो ठीक है समझ गए हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए। इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस। ओ माय गॉड हाँ मैं कर लेता हूँ ना लॉगिन मैं पढ़ रहा हूँ लॉगिन करवा रहा a router is a networking device that forwards data packages between different computer networks। जैसे आपका घर का एक वाईफाई है। ओ माय गॉड कैन जस्ट आपके घर का एक वाईफाई है और आपके दोस्त के घर का एक वाईफाई है। तो ऑब्वियसली वो राउटर्स हैं। अब जब आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो आपके घर के राउटर से वो डेटा जाता है पहली बात पैकेज में और फिर उसको जाना है आपके दोस्त के घर में। तो वो ऑब्वियसली उस ट्रांसफ़र से उस राउटर से वो ट्रांसफ़र होगा, वो ट्रांसफ़र करेगा राउटर। देयर इज़ ऑल्सो रिटन हियर अब लिखा द राउटर एग्जामिन्स द पैकेज मतलब आपके घर से डेटा वो पैकेज बना वो एंड फॉरवर्ड्स इट टू द नेक्स्ट राउटर। तो मतलब जो नेक्स्ट राउटर होता है आपके राउटर में आपके घर पे जो लगा राउटर और आपके दोस्त के घर के राउटर के बीच में बहुत डिस्टेंस होगी। तो क्या होगा उसके फिर वो क्या करेगा इट विल सेंड इट टू द नेक्स्ट राउटर जो क्लोजेस्ट राउटर होगा इन द पाथ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। क्या है आपका दोस्त का घर डेस्टिनेशन है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द पैकेज रीचेस टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है। टू इंश्योर द packages are sent and received correctly, the internet uses a variety of protocols, including the internet protocol (IP) and the transmission control protocol (TCP). IP is responsible for routing packages to their correct destination, while TCP ensures that packages are transmitted reliably in the correct order। तो बेसिकली आईपी क्या करता है आईपी ये चीज़ करता है कि राउटिंग पैकेजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेजेस टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। तो मतलब आपका जो पैकेज अगर आपने अपने दोस्त को भेजा तो वो दोस्त ही तक जाए आपके। ठीक है। तो वो चीज़ उस डेस्टिनेशन को सही रखने के लिए आईपी काम करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी बेसिकली इंश्योर क्या करता है कि जो आपने पैकेज भेजा था वो रिलायबली और इन द करेक्ट ऑर्डर पहुंच जाए आपके दोस्त तक। जैसे ही आपने कोई वीडियो भेजी तो वो आगे पीछे ना हो जाए, वो एकदम रिलायबली जैसी वीडियो आपने भेजी वैसे ही जाए आपके दोस्त तक, आपके दोस्त तक ही जाए। तो ये चीज़ इंश्योर क्या करते हैं ये आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इंश्योर करता है एंड टीसीपी करता है इंश्योर। ठीक है। In addition to these core protocols, there are a wide range of other technologies and protocols that are used to enable communication, the data exchange over the internet, including the domain name system DNS, the hypertext transfer protocol HTTP, and the secure socket layer, transport layer secure। Oh my god, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा।
including फिर से in addition to these core protocols, there are a wide range of other technologies and protocols that are used to enable communication and data exchange over the internet, including the domain name system DNS. तो अच्छा ये डोमेन अच्छा सिर्फ बता रहा है कौन से और प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो ये आपको प्रोटोकॉल्स बता रहा है। तो एक तो है DNS डोमेन नेम सिस्टम, द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, वही HTTP एंड द सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, तो SSL TLS, ठीक है। तो ये भी होता है। उसके बाद बताया नहीं कि होता क्या है, क्या काम करता है, बट आपको मतलब नाम बता दिया है कि ये प्रोटोकॉल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एज अ डेवलपर इट इज़ important to have a solid understanding of how these different technologies and protocols work together to enable communication and data exchange over the internet. Basic concepts and terminologies. To understand internet, it's important to be familiar with some basic concepts and terminologies. Here are some terms and concepts to be aware of. तो packages क्या होते हैं? Packages are a small unit of data that is transmitted over the internet. तो जैसे आपने अपनी फोटो अपने दोस्त को भेजी व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो बेसिकली एक पैकेज होगा। इट इज़ लाइक अ स्मॉल यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है ऑफ डेटा। यानी इमेज क्या होगी, इमेज आपकी क्या होगी, 1 MB की, 2 MB की, 3 MB की, 20 MB की इमेज होगी। दैट इज ट्रांसफर्ड ओवर द इंटरनेट। राउटर क्या होता है? राउटर अ डिवाइस दैट डायरेक्ट्स पैकेजेस ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो मैंने आपको बता दिया, वो तो मैंने गीक्स पे आपको डेफिनेशन दिखा दी थी ये वाली। इसमें थोड़ा सा छोटा दे रखा है, अ डिवाइस दैट डायरेक्ट्स पैकेजेस ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। IP एड्रेस क्या होता है? अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क यूज्ड टू राउट डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। तो बेसिकली जब आप बेसिकली अपने वाईफाई कनेक्ट करते हो, आपके घर में वाईफाई लगा होगा, आप जब कनेक्ट करते हो तो वो वाईफाई बेसिकली आपको एक IP एड्रेस करता है प्रोवाइड। मतलब आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको दिखेगा नहीं कभी बनकर, मतलब हो तो दिखता हो, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, दिखता है, बट आपको कभी इतना, जो जिसने कभी देखा नहीं हो उसे रियलाइज़ भी नहीं किया होगा ऐसा कुछ होता है बैकग्राउंड में। तो एक IP बनता है, ऑब्वियसली वो आपका उस नेटवर्क पे, उस पर्टिकुलर नेटवर्क पे आपको एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है। इस आइडेंटिफायर को यूज़ करके जब आप किसी को डेटा सेंड करते हो या फिर कोई डेटा आपको भेजता है, तो इंटरनेट जानता है कि अच्छा ये डेस्टिनेशन है और यहीं पे जाना चाहिए डेटा। तो जस्ट मेक श्योर कि आपकी IP पर ही डेटा जाए। डोमेन नेम क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल नेम दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेबसाइट सच एज google.com। तो पहले डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन देखो, अगर आप डोमेन नेम बेसिकली जो होता है आपकी जो वेबसाइट आप यूज़ करते हो, जैसे कि मैं वेबसाइट अभी ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे cs.fye है, जो भी है वेबसाइट का नाम, या फिर roadmap.sh है जहाँ पे ये रोड मैप है। तो ये बेसिकली ह्यूमन रीडेबल नेम्स है जिसको आप बेसिकली रीड कर सकते हो और यू कैन रिमेंबर इट कि अच्छा ये वेबसाइट मैंने विजिट करी थी। तो ये वही चीज़ होती है, नाम होता है वेबसाइट। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। तो बेसिकली जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। जैसे कि जब आप इंटरनेट, आप बेसिकली अपना वेब ब्राउज़र खोलते हो, डालते हो youtube.com या फिर www.youtube.com डालते हो, तो वो बेसिकली एक डोमेन नेम है। उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है उसकी IP एड्रेस पर, क्योंकि वो बेसिकली इंटरनेट पे एक जगह पे होस्टेड है वो वेबसाइट, उसको उसकी काइंड ऑफ IP एड्रेस पे ट्रांसलेट करना होता है। तो वो काम क्या करता है? DNS करता है, ठीक है। अभी आप बेसिकली बहुत सिंपल समझ लो, इतना डरने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट डज। द डोमेन नेमिंग सिस्टम क्या करता है? वो ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स को, यानी कि google.com को ट्रांसलेट करेगा उसके IP में, जिससे कि वो आपको उस वेबसाइट तक पहुंचा। ऑब्वियसली HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट Transfer protocol is used to transfer data between a client, such as a web browser, and a server, such as a website. Hypertext markup hypertext transfer protocol is used to transfer data between a client, such as a web browser, and a server, such as a website. तो बेसिकली आपका डेटा, जैसे कि आप से यूट्यूब पे जाते हो और आप सर्च करते हो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, बेसिकली आपने बेसिकली अगर आपने उसको डेटा ट्रांसफर किया, आपने एक क्वेरी भेजी, ऑब्वियसली उसने आप वेबसाइट पे, बेसिकली वेबसाइट यूट्यूब थी तो उसने आपको वीडियो भेज दी। तो ये जो डेटा का आदान प्रदान होता है, होता है डेटा का दो क्लाइंट्स के बीच में, वो HTTP हैंडल करता है। वैसे HTTPS करता है हैंडल, बट HTTP जो था वो पहले करता था।
HTTPS में जो S होता है ये सिक्योर होता है, तो इट इज़ बेटर देन HTTP, ठीक है। HTTPS इज़ अ एन्क्रिप्टेड वर्जन ऑफ HTTP दैट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर, ठीक है। तो ये इसका बेटर वर्जन है। आजकल लोग HTTPS यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो इससे कनेक्शन इज़ सिक्योर्ड। अगर आप कोई भी वेबसाइट होगा जहाँ पे आप HTTP दिखाओगे तो उसमें ये सिक्योर शायद ना आए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये बताएगा आपका ये वाला जो था सॉकेट वाला, द सिक्योर सॉकेट्स लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी protocols are used to provide secure communication over the internet। तो बेसिकली सॉकेट्स बेसिकली बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि आपका माइक्रोफोन का जो एक्सेस लेता है, और बेसिकली आपका कैमरा, जैसे अगर आपने ओमेगल यूज़ करा होगा तो ओमेगल पे बेसिकली वो पूछता था कि अगर आपका फेस का कुछ वो कैमरा ऑन करना है कि नहीं करना, तो वो बेसिकली वेब सॉकेट्स के थ्रू होता है। ये बेसिकली अपने में कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिखाऊंगा मैं आगे जाके जब वो आएगा। अभी आप समझ लो कि बेसिकली ये बेसिकली इट प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग these basic topics and terms is essential for working with the internet and developing internet-based applications। And the role of trans the role of protocols in internet understanding भी है, बहुत कुछ है, पढ़ के दिखा। The role of protocols in internet ये वाला था। Protocols play a critical role in enabling communication, data exchange over the internet। A protocol is a set of rules and standards that define how information is exchanged between devices systems। प्रोटोकॉल क्या करता है? प्रोटोकॉल बेसिकली अनेबल क्या करता है? डेटा ट्रांसफर या डेटा एक्सचेंज एनेबल करता है, कम्युनिकेशन एनेबल करता है ओवर द इंटरनेट। प्रोटोकॉल होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड अ स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस हाउ इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस एंड सिस्टम। मतलब आप किसी से बात करोगे तो कैसे बात करोगे? फ़ोन के थ्रू बात है, वो तो थोड़ा बेकार एग्जाम्पल। बट यू अंडरस्टैंड कि वो रूल्स प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि इस तरीके से ही डेटा ट्रांसफर होगा नेट में दो डिवाइसेस और सिस्टम्स के बीच। दैट्स लाइक अ प्रोटोकॉल, इट्स लाइक अ सेट ऑफ रूल्स। और वो अनेबल क्या करता है? वो कम्युनिकेशन एंड डेटा एक्सचेंज अनेबल करता है। देयर आर मैनी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स देयर आर मैनी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स used in internet communication, including the internet protocol, the transfer control protocol, and the user datagram protocol। The domain तो बेसिकली यहाँ और भी रखे प्रोटोकॉल जो आपको पढ़ने पड़े। टाइप्स IP is responsible package of data to direct destination, and while TCP and UDP ensures the packages are transmitted reliably and efficiently। तो इसलिए आईपी क्या करता है कि आईपी रिस्पॉन्सिबल आईपी प्रोटोकॉल जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसलिए क्या करता है वो इंश्योर करता है कि आपका जो पैकेजेस जो हैं वो सही डेस्टिनेशन पहुँचे, मतलब जिस जहाँ पे आपने अपने जिस दोस्त को आपने भेजने को कहा है वहीं पे उसी दोस्त के पास जाए। एंड TCP and UDP ensures the packages are transmitted reliably and efficiently। मतलब वो सेफली हो, मतलब आपके ऐसा ना हो कि फाइल आपने भेजी वो करप्ट हो जाए बीच रास्ते में, ऐसा नहीं होगा, और वो पहुंच जाएगी उसी बंदे को जिसको आपने भेजी थी, ठीक। और DNS क्या होता है? इज यूज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेसेस। द HTTP is used to transfer data between clients and servers। One of the key benefits of using standardized protocols is that they allow systems and devices from different manufacturers and vendors to communicate with each other seamlessly। Protocol, for example, a web browser developed by one company can communicate with a web server developed by another company as long as they do adhere to the HTTP protocol।
As a developer, it is important to understand the various protocols used in internet communication and how they provide how they work together to enable the transfer of data information over the internet. तो इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आप बेसिकली क्रोमियम ब्राउज़र यूज़ करते, क्रोमियम नहीं, एज ब्राउज़र यूज़ करते हो, वैसे मैं एज यूज़ करता हूँ। एज बेसिकली जो है, एज ब्राउज़र बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है। एंड अगर इफ़ आई वांट टू लाइक काइंड यू नो ये यूट्यूब खोलना है, तो यूट्यूब बेसिकली गूगल का है, तो गूगल बेसिकली एचटीटीपी सपोर्ट करता है, और वेब ब्राउज़र ये जो एज है माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी एचटीटीपी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये दोनों मतलब ये दोनों बेसिकली इस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इवन दो वो दो अलग अलग कंपनीज है, आई कैन स्टिल यूज़ अ एज ब्राउज़र टू सर्व यूट्यूब। तो बेसिकली इससे ये फ़ायदा होता है जब आपके पास स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल होता है। अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेसेस एंड डोमेन नेम्स. IP addresses and domain names are both important topics to understand when working with the internet. An IP address is a unique identifier assigned to each device on the network. It's used to route data to the correct destination, ensuring that information is sent to the intended recipient. मतलब इसलिए IP address से क्या फ़ायदा होता है कि आपने जिसको भी भेजा होगा, जिसको वैसे उसी के पास डेटा जाएगा। IP addresses are typically represented as a series of 4 numbers separated by periods. तो IP address ऐसा दिखता है कुछ। There are like 4 series of numbers, ये एक सीरीज हो गई, ये एक सीरीज हो गई, और वो सेपरेट कैसे होगा, वो डॉट, ये पीरियड सेपरेट होता है, ये फुल स्टॉप आप कह सकते हो उसको, पीरियड्स। Domain names, so on the other hand, are human readable names used to identify websites on and other internet resources. They typically compose of 2 or more parts separated by periods. For example, google.com हो सकता है, it is like a domain name. Obviously अगर youtube.com भी होगा तो वो भी domain name ही आएगा। कोई भी वेबसाइट का नाम जो होता है वो domain name कहते हैं उसे। Domain names are translated into IP addresses using the domain name system, DNS. DNS is a critical part of the internet infrastructure responsible for translating domain names into IP addresses. When you enter a domain name into your website, when you enter a domain name into your web browser, जैसे कि जब मैं अपने ब्राउज़र को खोलता हूँ, एज ब्राउज़र खोलता हूँ, उसमें मैं डालता हूँ youtube.com, your कंप्यूटर सेंड्स अ DNS क्वेरी टू द DNS सर्वर। जैसे कि आप देखो ये क्वेरी यहाँ पे आ रही, मैंने क्वेरी भेजी कि मुझे चाहिए youtube.com, तो बेसिकली DNS सर्वर पे वो क्वेरी जाएगी, विच विल रिटर्न द करस्पॉन्डिंग IP address, which returns the corresponding IP address. Your computer that use that IP address to connect to the website or other resources you request. यानी कि मैंने जब YouTube का, मैंने बेसिकली क्या करा, अपना एज ब्राउज़र खोला, उस पर डाला www.youtube.com, ठीक है। वो बेसिकली वो क्वेरी क्या थी, वो DNS क्वेरी थी, वो गई DNS सर्वर पर, DNS सर्वर ने कहा अच्छा ये वेबसाइट इसको चाहिए, उठाया और उसने मुझे दे दिया, और मैं बेसिकली वेबसाइट विजिट कर सकता हूँ। हाँ, सो आई एम बैक। सो बेसिकली उन्होंने ये पढ़ लिया था। आप लोग समझ गए होंगे कि यूट्यूब जब अपना यूट्यूब वेबसाइट की जब मुझे IP एड्रेस मिल जाएगी, तो मेरा जो वेब सर्वर है या मेरी वेबसाइट वेब ब्राउज़र है, वो यूट्यूब वाली वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा। दिस इज़ लाइक द लाइक काइंड ऑफ ना जिस्ट ऑफ दिस टॉपिक कि हो क्या रहा है, DNS करता क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इंट्रोडक्शन टू HTTP एंड HTTPS. HTTP Hypertext Transfer Protocol and HTTP सिक्योर होता है। यानी कि ये बेसिकली फुल फॉर्म जो होगा यही HTTP वाला होगा, आगे बस ये सिक्योर वर्ड ऐड हो जाता है, ठीक है। यही इतना ही डिफरेंस होता है उनके बीच में। आर टू ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज प्रोटोकॉल्स इन इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज, ठीक है। HTTP is the protocol used to transfer data between a client such as a web browser and a server such as a website, ठीक है। तो बेसिकली डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बीच में एक वेब ब्राउज़र के बीच में और एक वेबसाइट के बीच में, या फिर जो वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, वो सर्वर पे ही होस्टेड होती है, तो उसे सर्वर बोला जाता है उसको, ठीक। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट, योर
web browser sends a HTTPS request to the server, HTTP request to the server, asking for the website, asking for the web page or other resources you have requested. The server then sends a HTTP response back to the client containing the requested data. ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है HTTP सर, आप एक HTTP रिक्वेस्ट आप एक HTTP रिक्वेस्ट भेजते हो सर्वर को आस्किंग फॉर अ वेब पेज, यानी कि youtube.com में फॉर एग्जांपल youtube.com लेते हैं, यूट्यूब आप करते हो और अदर रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है आप गूगल लिखो, हो सकता है आप कुछ और लिखना चाहो, हो सकता है आप चैट जीपीटी लिखना चाहो, वो आपको क्या करेगा, द सर्वर देन सेंड्स यू HTTP रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट कंटेनिंग द रिक्वेस्ट डेटा। तो आपने यूट्यूब, अगर आपने यूट्यूब वेबसाइट मांगी होगी तो यूट्यूब वेबसाइट दे देगा वो उठाकर, अगर आपने चैट जीपीटी बोला होगा चैट जीपीटी दे देगा उठा के, अगर आपने google.com दिया होगा तो google.com दे देगा। तो HTTPS क्या होता है? It is like a more secure version of HTTP which encrypts the data being transmitted between the client and the servers using uh, SSL TCL। इसलिए ये वही आपके वेब सॉकेट्स हो गए, ठीक, यहाँ पे लिखा है फुल फॉर्म सिक्योर वेब सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी encryption. This provides an additional layer of security helping to protect sensitive information such as login credentials, payment information, and other personal data. When you visit a website that uses HTTPS, जैसे कि अब यहाँ पे आप देखोगे क्लिक करो तो ये सिक्योर दिखा रहा है, तो ये सिक्योर वेबसाइट है, ठीक, ये सिक्योर वेबसाइट, तो ये HTTPS पे चल रही है और वेब ब्राउजर विल डिस्प्ले अ लॉक पैड आइकन। देखो यहाँ पे इसलिए लॉक दिखा भी देखो ताला बन के नहीं आ रहा, तो ये इसलिए आ रहा है, जिस वेबसाइट पे नहीं होगा उस पर आई थिंक ताला बन के नहीं आएगा या फिर कट के आएगा, ऐसे कट लगा होगा थोड़ा सा क्रॉस, डिस्प्लेज अ पैडलॉक आइकन द एड्रेस बार, तो ये बेसिकली एड्रेस बार भी दिखा रहा है इंडिकेटिंग दैट द कनेक्शन इज सिक्योर्ड। यू मे ऑल्सो सी द लेटर्स HTTPS, तो यहाँ पे देखो HTTPS भी दिख रहा होगा at the top at the beginning of the website address rather than HTTP। तो इसलिए जो वेबसाइट जो यूज़ कर रही होगी HTTPS, वहाँ पे HTTPS दिखेगा आपको लिखा होगा, जो नहीं यूज़ कर रही होगी उसमें आपको नहीं दिखेगा ये S लिखा हुआ नहीं दिखेगा। और आपको अगर आपको वेबसाइट अगर आपका वेब ब्राउज़र बेसिकली सपोर्ट करता होगा तो बेसिकली वो लॉक पैड पे ऐसे कट भी दिखाएगा अगर HTTPS नहीं होगी वेबसाइट, ठीक है। बिल्डिंग वेब building applications with building applications with TCP/IP। तो TCP/IP होता क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द underlying communication protocol used by most internet-based applications and services. It provides a reliable, ordered, and error-checked delivery of data between applications running on different devices। समझना पड़ेगा क्या है, इट इज लाइक अंडरलाइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज। ठीक है, किसके 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 माय गॉड किसके 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 द्वारा यूज हो रहा है, ये चीज किसके द्वारा यूज हो रहा है, एप्लीकेशंस एंड सर्विसेज द्वारा यूज हो रहा है। इट प्रोवाइड्स अ reliable, ordered, and error-checked delivery of the data between applications running on different devices। ठीक है, जैसे कि आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे भेजते हो, मतलब कुछ भी आप ऐसे मीम भेजते हो अपने व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को, तो वो बेसिकली करप्टेड ना हो, रिलायबली पहुंच जाए और आपके दोस्त तक ही पहुंचे, वो इंश्योर क्या करता है, वो ये इंश्योर करता है। when building applications with HTTP and IP, there are a few key concepts to understand. Ports are used to identify the application or service running on the device. So ports are used to identify the application and service running on the device. Each application or service is assigned a unique port number allowing data to be sent to the correct destination। तो बेसिकली पोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली वर्चुअल पोर्ट्स हैं। वर्चुअल पोर्ट्स समझते हो, जैसे कि आपके अगर आप पीसी पे वीडियो देख रहे हो, आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें पोर्ट्स होंगे, जैसे यूएसबी पोर्ट होता है, आपके फ़ोन में भी लगा होता है जो आप चार्जिंग करते हो, उसको क्या कहते हैं,
सी टाइप पोर्ट नहीं बोलते, सी टाइप पोर्ट है ये, तो वो बेसिकली पोर्ट्स हैं, वो फिजिकल पोर्ट्स हैं, तो फिजिकल है। अब एक वर्चुअल पोर्ट होता है, वर्चुअल पोर्ट क्या होता है, जैसे कि आप जितनी वेबसाइट्स और सर्विसेज अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने सिस्टम पे खोलते हो जो नेट को एक्सेस कर रही होती है, उसमें डेटा जा रहा है आ रहा है, तो डेटा जा कैसे रहा है, वो पोर्ट्स के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये वही वाले पोर्ट्स की बात कर रहे हैं। ईच एप्लीकेशन और सर्विसेज असाइंड अ यूनिक पोर्ट नंबर, तो ये यूनिक पोर्ट असाइन करते हैं, जैसे आपका जो फ़ोन के साथ, अब आपके फ़ोन के साथ आपने चार्जर लिया होगा तो उसमें वो वायर मिलता है ना, केबल मिलती है, तो वो असाइंड है कि भैया, ऐसे थोड़ा बेकार एग्जांपल है बट यू अंडरस्टैंड कि हर डिवाइस का अपना एक, हर हर एप्लीकेशन और सर्विस का अपना एक यूनिक पोर्ट नंबर होता है विच अलाउज डेटा टू बी सेंड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। अगर आप पिछली एक वेबसाइट, अगर आपने बेसिकली व्हाट्सएप से अगर आप व्हाट्सएप पे डेटा आ रहा है आपके, और आपके व्हाट्सएप पे डेटा आपसे जा रहा है, तो बेसिकली वो उसी व्हाट्सएप वाली वेबसाइट या फिर ऐप पे ही जाएगा, वो उसी पोर्ट नंबर का, वो उसी पोर्ट का ही यूज़ करेगा डेटा आने जाने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपका यूट्यूब वाला पोर्ट यूज़ कर लिया जाएगा। वो आपकी आपका एप्लीकेशन खुला हुआ है सिस्टम पे, और उसको एक एक जो पोर्ट है, यूनिक पोर्ट असाइन कर दिया गया है, तो उसी से डेटा आदान प्रदान होगा, ये आप समझ जाइए। दूसरा क्या है, सॉकेट्स। अ सॉकेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IP address and a port number representing a specific endpoint for communication. A socket is a combination of an IP address and a port number representing a specific endpoint for communication. Sockets are used to establish connection between devices, transfer data between applications. तो पोर्ट क्या करता है, पोर्ट का काम क्या होता है, कनेक्शन स्टैब्लिश करता है दो डिवाइसेस के बीच में, एंड डेटा ट्रांसफर करता है दो एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, पोर्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड अ पोर्ट नंबर, ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। Connections, a connection is established between two sockets when two devices want to communicate with each other. During the connection establish process, during the connection establishment process, devices negotiate various parameters such as maximum uh, segment size and window size, which determines how data will be transmitted over the नेटवर्क। तो बेसिकली जो कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है दो सॉकेट्स के बीच में, जो डिवाइसेस एक दूसरे कनेक्ट करना चाहती हैं, वो क्या होगा, ड्यूरिंग द कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट प्रोसेस डिवाइसेस बेसिकली नेगोशिएट करेंगे, मतलब एक दूसरे से बात करेंगे कि पैरामीटर्स के बारे में, कि कितना मैक्सिमम सेगमेंट होना चाहिए, सेगमेंट साइज होना चाहिए, और कितना विंडो साइज होना चाहिए, ठीक है। which determines how data will be transmitted over the network, over the connection, ठीक है। डेटा ट्रांसफर क्या होता है, वंस अ कनेक्शन इज established, data can be transferred between the applications running on each device. Data is typically transmitted in segments, with each segment containing a sequence number and other metadata to ensure reliable delivery. Data transfer क्या होता है, once a connection is established, a data can be transferred between the applications running on each device, ठीक है। दो एप्लीकेशन, जैसे दो डिवाइसेज हैं आपके पास, एक व्हाट्सएप एक पे चल रहा है, दूसरे व्हाट्सएप चल रहा है, तो वो डेटा उस तरह समझ लो कि डेटा जो है ट्रांसफर क्या होता है, एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे जा रहा है। डेटा इज टिपिकली ट्रांसमिटेड इन सेगमेंट्स, with each segment containing a sequence number and other metadata to ensure reliable delivery। जैसे कि अगर आप बेसिकली आपके फ़ोन पे जब व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजते हो तो वो नीचे नंबर दिखाता है ना, टाइम दिखाता है कितने टाइम पे मैसेज भेजा गया। आपके फ़ोन पे भी आपके दोस्त के फ़ोन पे दिखाएगा कि कितने टाइम पे मैसेज रिसीव हुआ। तो वो बेसिकली एक इट्स लाइक अ टाइप ऑफ मेटा डेटा ओनली, इवन दो आपको दिख रहा है, उसके अलावा भी बहुत सा डेटा होता है बैकग्राउंड में, बट ये भी डेटा है जो आपको दिखता है कि अच्छा कब भेजा गया। इसको मेटा डेटा बोल सकते हो एक तरह से, मेटा डेटा। When building applications with TCP/IP, you will need to ensure that your application is designed to work with the appropriate ports, sockets, and connections. You will also need to be familiar with the various protocols and standards that are commonly used by TCP/IP, such as HTTP and FTP, File Transfer Protocol, and SMPTP, Simple Mail Transfer Protocol. Understanding these concepts
and protocols is essential for building effective, scalable and secure internet-based applications and services. ठीक है, securing internet communication with SSL TCL. थोड़ा सा और बचाओ. As we discussed earlier, SSL and TCL is a protocol used to encrypt data between transmitted is used to encrypt data being transmitted over the internet. Is a protocol used to encrypt data को encrypt करता है which is being transmitted over the internet. Like it is commonly used to provide secure connection for applications such as web browser, email clients and data transfer प्रोग्राम्स. तो इसलिए क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है. जैसे कि आपकी कंपनी ने अगर आपको ईमेल भेजेगा, अगर आपकी कंपनी आपको एक ईमेल भेज, तो इसलिए वो मोस्ट लाइकली ये प्रोटोकॉल यूज़ करता होगा जिससे कि वो इनक्रिप्ट हो जाए, वो बेसिकली ईमेल जो है इनक्रिप्ट हो जाए, जिससे कि कोई और बीच में जो मिडिल मैन हो आपके नेटवर्क के और आप जिसको भेज रहे हो उसके बीच में कोई मिडिल मैन आके उसको पढ़ ना ले, इसलिए डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है. ठीक है. व्हेन यूजिंग SSL TCL to secure data communication, there are a few key concepts to understand. Certificates SSL TLC certificates are used to establish trust between the client and server. They contain information about the identity of the server and are signed by a trusted third party, a certificate authority, to verify their authenticity. तो बेसिकली क्या होता है, आर यूज टू स्टैब्लिश ट्रस्ट, मतलब इसकी आप क्या गारंटी है कि जो व्हाट्सएप पे आपने मैसेज लिख के भेजा है वो कहाँ से आया है और क्या आपके दोस्त के थ्रू ही आया है. ठीक है. तो इसलिए आपको पता है, जब आप इसलिए आपका दोस्त आपको भेजता है कोई मीम, तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है ना कि भाई आपका दोस्त जो भी अभ्युदय है आपका दोस्त, उसने आपको मीम भेजा है. ठीक है, सीधी बात है. तो आपको दिख जाएगा अच्छा अभ्युदय ने मुझे मीम भेजा है, तो आप समझ जाओगे, आपको एक ट्रस्ट होगा कि अच्छा इसने भेजा है तो चेक कर लेता हूँ. अगर कोई अननोन नंबर आता है जिसका डीपी ना लगी हो, आप क्या उसका व्हाट्सएप नंबर खोलोगे, मतलब वो आप खोलो, बट कुछ लोग होता है इग्नोर कर देते हैं कि पता नहीं कौन है, क्या है, क्या चाहिए, इसको लिंक क्यों भेजा है मुझको, मुझे नहीं पता, कहीं हैक ना कर ले. तो दैट्स लाइक इट्स लाइक अ ट्रस्ट कि अच्छा मेरे दोस्त ने भेजा है मेरे को उसका नंबर पता है, मुझे पता है कहाँ रहता है, तो आई नो कि हाँ ट्रस्ट है. तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है इंटरनेट पे, बेसिकली आपको सर्टिफिकेट दिखा देता है कि भाई देखो ये बेसिकली साइन बाय ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, अ सर्टिफिकेट और अथॉरिटी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी. कि अच्छा भाई ये तो मेरे दोस्त के नंबर से मैसेज आया है, ये सही होगा, ये गलत नहीं हो सकता. ठीक है. तो एक ट्रस्ट होता है आपके आपके और आपके दोस्त के बीच में एक ट्रस्ट होता है. हैंडशेक्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग द SSL TCL हैंडशेक प्रोसेस, द क्लाइंट एंड सर्वर exchange information to negotiate the encryption algorithms and other parameters for the secure connection. पहले हैंडशेक क्या करता है? हैंडशेक प्रोसेस होता है जहाँ क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन टू नेगोशिएट द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, मतलब कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करेंगे इंक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को इंक्रिप्ट करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज़ होगी, एंड अदर पैरामीटर्स टू इंश्योर फॉर अ सिक्योर कनेक्शन. ठीक है. इंक्रिप्शन क्या होता है? Once the secure connection is established, data is encrypted using the agreed upon algorithm and can be transmitted securely between the client and server. तो ठीक है, बेसिकली जब हैंडशेक एक बार हो गया, हैंडशेक सक्सेसफुल हो गया, तो एक क्लाइंट के बीच में एंड सर्वर के बीच में क्या है, हाँ क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जब हैंडशेक का प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है, वी अग्री अपॉन लाइक अ इंक्रिप्शन बेसिकली हम लोग एल्गोरिथम पे अग्री करते हैं कि ये यूज़ करेंगे, इस एल्गोरिथम को हम लोग यूज़ करेंगे डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए, एंड डेटा देन कैन बी ट्रांसमिटेड सिक्योरली बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर. ठीक. नेक्स्ट क्या है, वी when building net based applications and services, important to understand how SSL and TLS works to ensure that your application is designed to use SSL and TLS when transmitting sensitive data such as login credentials, payment information, and other
personal data, you will also need to ensure that you obtain and maintain valid SSL and TLS certificates for your servers. You also need to ensure that you maintain valid certificates for your servers, and that you follow best practices to configuring and securing your SSL and TLS connections. By doing so, you can help protect your users' data and ensuring the integrity of confidentiality rates. ठीक है, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मैं ट्राई भी कर रहा हूँ यार, समझ जाओ, मैं रीड नहीं कर सकता, पता नहीं मतलब ऑफ योर एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप बेसिकली ये इस बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हो और अपने सर्वर्स के लिए एक सर्टिफिकेट लेते हो, एंड इससे आप फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने यूज़र्स का डेटा जो है प्रोटेक्ट कर पाओगे, और यू विल इंश्योर इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी योर एप्लीकेशंस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। जैसे कि जैसे व्हाट्सएप जो होता है वो कहते हैं ना एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, कोई आपका मैसेज रीड नहीं कर सकता, तो बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि जो यूज़र का डेटा है वो बेसिकली जिसको भेजा जा रहा है वही रीड कर पाए और कोई रीड ना कर पाए, तो इसलिए इंश्योर कर रहे हैं कि आपका डेटा जो प्रोटेक्टेड रहे और डेटा बीच में कोई रीड ना कर पाए। तो दैट्स व्हाट लाइक दे आर ट्राइंग टू से, दिस इज व्हाई यू नीड टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड काइंड सर्टिफाइड योर लाइक सर्विस। तो आई एम बैक, मैं पानी पीने गया था। द फ्यूचर, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज। The internet is constantly evolving and new technologies and trends are emerging all the time. As a developer, it's important to stay up to date with the latest developments in order to build innovative and effective applications and services. तो इसलिए क्या कहना चाह रहा है ये, इंटरनेट हमेशा इवॉल्व करता रहता है, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो एज अ डेवलपर, जैसे कि आप लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब ये हम लोग स्टडी सेशन कर रहे हैं, तो इसलिए हम सब डेवलपर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू स्टे अप टू डेटेड, मतलब हम लोग को रोज़ पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जिससे हम लोग थोड़ा सा अपडेटेड रहें कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इनोवेटिव एंड इफेक्टिव एप्लीकेशन एंड सर्विसेज बना पाओगे। Here are some of the emerging trends and technologies that are shaping the फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। 5G बारे में अभी 5G इंडिया में भी आ गया है, बहुत पहले ही आ चुका था। 5G इज़ लाइक द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, offering faster speeds, low latency, and greater capacity than previous generation. It is expected to enable new use cases such and applications such as autonomous vehicles and remote surgeries. तो बेसिकली क्या है ये 5G क्या है, 5G जो है जो लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी है। ये ऑफर क्या करती है, हायर स्पीड्स ऑफर करती है, लो लेटेंसी ऑफर करती है, ग्रेटर कैपेसिटी देन द प्रीवियस जनरेशन। मतलब 4G की बात हो रही है, मतलब 4G से बेटर है 5G, तो सबको ही पता है। तो ये बेसिकली आपको क्या देती है, आपको ऑटोनोमस व्हीकल्स देती है, मतलब इसकी सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स यूज़ कर सकती हैं इस डेटा का, क्योंकि देखो लेटेंसी लो है और प्लस स्पीड फास्टर है, तो यानी कि आप डेटा को जल्दी प्रोसेस कर सकते हो। और जब आप रोड पे चल रहे हो तो आपको देखना पड़ता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, कोई आ रहा है, तो आपको फटाफट डिसीजन लेना पड़ता है, राइट। इंडिया में तो खासकर बहुत ही भीड़ भाड़ है, तो आपको बहुत देख के चलानी पड़ती है गाड़ी बहुत देख के चलानी पड़ती है, तो ये एक बहुत चीज़ है। एंड दूसरा क्या है, रिमोट सर्जरीज, मतलब कि अगर आप बेसिकली पुणे में बैठे हो और आप बेसिकली दिल्ली में कोई अस्पताल है, वहाँ पे आप बेसिकली रिमोट सर्जरीज कर सकते हो, बिकॉज उसमें भी बेसिकली आपको क्या करना है, लेटेंसी कम चाहिए आपको। लेटेंसी इसलिए तुरंत अगर जैसे अब यहाँ पे हाथ हिला रहे हो तो वहाँ मशीन का हाथ हिल जाए उसी टाइम पर। दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सर्जरीज वगैरह होती हैं वो बहुत प्रिसाइज काम होता है, थोड़ा सा ये गलती हो जाए प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, IoT refers to the network of physical devices, vehicles and home appliances and other objects that are connected to the internet and can exchange data. As IoT continues to grow, it is expected to revolutionize industries such as healthcare, transportation and manufacturing, ठीक है। IoT बेसिकली क्या होता है, जो भी डिवाइस फिजिकल डिवाइस है, आपका फ़ोन है वो भी एक IoT डिवाइस है एक्चुअली। उसमें आप नेट से कनेक्ट हो जा रहे हो, तो जो भी डिवाइस जो है नेट से कनेक्ट हो पा रहा है वो बेसिकली एक IoT में आता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है, बिकॉज
ठीक है? Artificial intelligence, AI technologies such as machine learning and natural language processing are already being used to power a wide range of applications and services, from voice assistants to fraud detection. As AI continues to advance, it expects to enable new use cases and transform industries such as healthcare and finance and education. So blockchain पे आते हैं. Blockchain is a distributed ledger technology that enables secure decentralized transactions. It is being used to power a wide range of applications, from cryptocurrencies to supply chain management. Edge computing क्या होता है? Edge computing refers to processing of data at the edge of the network, rather than rather than at centralized data centers. It is expected to enable new use cases and applications such as real-time analysis, low latency applications. By staying up to date with these and other emerging trends and technologies, you can assure that your applications and services built to take advantage of the latest capabilities and offer the best process possible experience for your users. So let's read the conclusion now. Like, let's go on the conclusion. तो हम लोग बेसिकली ऊपर जितना भी सब कुछ कवर करा है, तो हम लोग एक बार रिवीजन हो जाएगा हम लोग का आर्टिकल का. And that brings us to the end of this article. We have covered a lot of ground, so let's take a moment to review what we have learned. The internet is a global network of interconnected computers that uses a standard set of communication protocols to exchange data. The internet works by connecting devices and computer systems together to standardize protocols such as IP and TCP. Okay, the core of the internet is a global network of interconnected routers that direct traffic between different devices and systems. Basic concepts and terminologies that you need to be familiarized yourself with includes packages, routers, IP addresses, domain names, DNS, HTTP, HTTPS, and SSL, TLS. Okay, protocols play a critical role in enabling communication and data exchange over the internet, allowing devices and systems between different manufacturers and vendors to communicate seamlessly. ठीक है? I hope you found this article helpful. If you have questions or comments, please feel free to comment below. Thanks for. So actually, this is like the end of my video also. So if you have any comments or any doubts, and if you have any suggestions for my videos, please leave them below. So I am actually open to suggestions. जैसे कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ या फिर basically I should explain this more better, like even like you know. So I will be open to your suggestions, guys. This is all for this week's long form content. I will see you guys next week. Till then, take care. Bye.